Welcome you all. We are going to start our session within no time. Okay, welcome you all. Now over to Ritika. Ritika, now we can start the session. Yes, ma'am. Technical team, you are ready? Ma'am, shall I start? Okay. Yes. Good afternoon to all our respected dignitaries, faculty members, and dear students. This is Ritika Sharma, and with great joy and immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to all present here for this session organized by Startup Club. Bhilai Institute of Technology Durg, initiated in 1986, has always provided its students with conducive and supportive academic ambience, blended with strong research and development culture, adopted by its faculties to support various undergraduate and post-graduation programs. With this, I want to welcome our chief patrons, Shri Vijay Kumar Gupta sir, Chairman BIT Trust, Shri IP Mishra sir, ex-General Manager at Bhilai Steel Plant and Secretary BIT Trust, our patrons Dr. Arun Arora sir, Director BIT Durg, Dr. Mohan Gupta sir, Principal BIT Durg, Dr. Manisha Sharma ma'am, Vice Principal BIT Durg, our convener for Startup Club, Dr. Shubhrata Nagpal ma'am, Professor at Department of Mechanical Engineering, our advisor, Dr. Satyavardhan Tiwari sir, Associate Professor at Department of Management, our program coordinator, Mr. Rajkumar Singh sir, Professor at Department of Information Technology, and our Startup Club members, Mrs. Vinita Gupta ma'am, MCA Department, Mr. Pushpendra Singh sir, Electronics and Telecommunication Department, Mr. Alok Kumar sir, Electrical Department, and Mr. Shubham Dashore sir, Civil Department. Startup Club aims to create the next generation of industry leaders and entrepreneurs by providing with necessary guidance and a platform full of opportunities to make their startup dream come true. Now, I would like to invite our convener of Startup Club, Dr. Shubhrata Nagpal ma'am, for welcome address. Ma'am, Yes. Thank you, Ritika. Good afternoon, one and all present here.
respected Dr. Manisha Sharma ma'am, Dr. Satyavardhan Tiwari sir, Mr. Rajkumar sir, dear faculty members, my own team members, and my dear students. Today is the very important day. As we all know, we are going to witness first online session of Startup Club. On behalf of Startup Club BIT Durg, I would like to welcome you all and hope that this session will be very, very useful and advantageous to all of you. Let's turn our ideas into reality. This is the tagline of our Startup Club. Now, thank you and welcome you all. Over to Ritika. Thank you, Ritika. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Now, I would like to welcome Dr. Manisha Sharma, ma'am, Vice Principal and Training and Placement Officer at BIT Durg, Professor at Department of Electronics and Telecommunication. Ma'am has received AICTE Vishwesvaraya Best Teacher Award 2020 and is winner of AICTE Leelavati Award 2020. Ma'am, I would like to invite you to address the gathering. Thank you, Ritika. Thanks a lot. A very good afternoon to all. Respected Shubhrata ma'am, Professor in charge and convener of the Startup Club. Dr. Satyavardhan Tiwari sir, advisor of the Startup Club and today's expert speaker as well. Professor Rajkumar Singh sir, the coordinator of the Startup Club and other Startup Club members as well. And most importantly, the students team of the Startup Club and the participants. It's nice that we are starting with the Startup Club session today. It's in a way, we are inaugurating the Startup Club today. बोलना चाहिए कि this is my dream coming true. मुझे बहुत टाइम से बहुत मन था कि ये पर्टिकुलर वर्टिकल जो है BIT दुर्ग का जो है स्टार्ट होना चाहिए एंड सीइंग द क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स, सीइंग द इनोवेटिवनेस अमंग द स्टूडेंट्स, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आई हैव फेल्ड फॉर द लास्ट 2-3 years. ये बहुत टाइम से मुझे लग रहा था कि ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस का भी एक अलग वर्टिकल स्टैंड करे. And this is a way we may stand apart from other institutions. If we want to go up, if we want our institute to recognize at the national front, so this is the one vertical we should make it very strong. और ये हमें अच्छे से मालूम है कि ये हमारी स्ट्रेंथ भी होगी, ये भी स्ट्रेंथ होगी. जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स, BIT स्टूडेंट्स को देखें तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है हमारे स्टूडेंट्स का जो हायर स्टडीज के लिए परस्यू करता है और वो अच्छा माहौल बन भी चुका है, राइट. ये अच्छा एनवायरनमेंट है, हमारा कल्चर है एंड जो स्टूडेंट्स के बीच में प्रेवलेंट है. सो दिस इज वी आर ओके विद द हायर स्टडीज वर्टिकल इन आवर इंस्टीट्यूट. प्लेसमेंट वर्टिकल अभी भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. कुछ हमने स्ट्रेंथन किया है पहले से, बट यस इसमें भी बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है. अभी भी मेनी थिंग्स टू बी डन. बट एक अनदर वर्टिकल जो एक अनदर ऑल्टरनेटिव होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए व्हेन एज सून एज दे एंटर द फर्स्ट ईयर, दिस इज द स्टार्टअप कल्चर इन द इंस्टीट्यूट. सो ऐसा कुछ हो कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्ट्रेंथ को पहले एनालाइज करें. दे मे रियलाइज देयर पोटेंशियल कि यस दे हैव दैट क्रिएटिव माइंडसेट इन देम. वी मेक देम अंडरस्टैंड दैट यस दिस इज योर स्ट्रेंथ. कई बार स्टूडेंट को बहुत टाइम तक समझ में ही नहीं आता है कि उसकी स्ट्रेंथ कहाँ लाई कर रही है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हम उसको रियलाइजेशन हो कि यस योर स्ट्रेंथ इज योर क्रिएटिविटी, योर इनोवेटिवनेस. पहले ये रियलाइजेशन आए. सेकेंड स्टेप में उसकी टीम बने जो नए नए आइडियाज के बारे में सोचे एंड ही और शी में बिकम अ पार्ट ऑफ द इनोवेशन क्लब दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड. सो फर्स्ट 2 years वो थोड़ा सा चीजों को फ्रीज नहीं करे, मे बी
बहुत सारी चीजों को ट्राई करे, देखे, समझे, समझने की कोशिश करे। एंड देन थर्ड और फाइनल ईयर में मे बी वो स्टार्टअप क्लब को ज्वाइन करे, और फिर टीचर्स फिर थोड़ा गाइडेंस ले कि व्हाट थिंग्स कैन बी एक्सप्लोर्ड इन कंटेक्स्ट टू छत्तीसगढ़ स्टेट, जो आज का टॉपिक है, तिवारी सर उस पर हाईलाइट भी करने वाले। एंड सो थिंग्स में मूव ऑन, सो दैट एट द एंड ऑफ द फाइनल ईयर there may be some concrete points he must be having. Okay, this is the where I can start, this is where I can take funding from, and we are there to support you all students, believe us, we are there to support you. You have that caliber in yourself, अपने में बिलीफ रखो, थिंग्स एवरीथिंग इज पॉसिबल, अपने जुनून को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो, सब कुछ अच्छा होगा। जस्ट करते चले जाओ, हार्ड वर्क करते चले जाओ, अच्छा होगा, अच्छा होना ही होगा। सो थिंग्स हैव टू टर्न अप, और टर्न अप होंगी ही। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, and feeling so elevated today ki this is the dream coming true ki we have started the startup club. Shubhita ma'am और उनकी पूरी टीम has really worked hard for it. अच्छी टीम भी बन गई है। अगर टीम अच्छी बन गई है स्टार्टअप क्लब की, तो आई थिंक आगे की जो रोड है वो काफी स्मूथ होगी। एंड वी होप कि नेक्स्ट 5 years में ये एक अलग ही कल्चर डेवलप होगा। थिंग्स विल ग्रो अप स्लोली, but definitely 5 years hence we hope the things to happen, we hope the things will turn out. Thanks a lot, thanks everybody. Thank you so much, ma'am. So today we are here to enlighten ourselves on the topic opportunities and challenges of startup in Chhattisgarh. We have with us a brand expert, speaker, motivator, a life and career coach, Mr. Satyavardhan Tiwari sir. Since last 20 years, sir is in professional consultancy and branding and is associated to many reputed professional institutions, ABKKV, Yuva Sangh, Laghu Udyog Bharti, Urla Industries Associations for counseling their professionals. With his expertise on branding, competitive strategies, startup ideas, corporate motivation, inclusive leadership, and business activation, he advises professionals on how to become competitive and innovative. On the behalf of Startup Club, I would like to invite Dr. Satyavardhan Tiwari sir to continue this session. थैंक यू रितिका। सबसे पहले रेस्पेक्टेड मनीषा मैम, नागपाल मैम, राजकुमार सर, my dear faculty members, dear students, I welcome you all in the Startup Club, the very first session. इसमें दो चीजों से हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मनीषा मैम की दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने कहा। एक तो उनका ड्रीम था स्टार्टअप, वाकई उनका नहीं बल्कि इनफैक्ट हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका भी ड्रीम है, मेक इन इंडिया। दैट इज समवट रिलेटेड विद व्हाट स्टार्टअप इज, स्टार्टअप से रिलेटेड है। दूसरा, मनीषा मैम ने एक बहुत अच्छा वर्ड, जो काफी एनर्जेटिक वर्ड मैं यूज करता हूँ, मनीषा मैम ने यूज किया, दैट इज पैशन। तो ये दो वर्ड्स को हम यहाँ पर लेकर यहाँ हम ये सेशन शुरू करेंगे स्टार्टअप का। स्टार्टअप होता क्या है, ठीक है, और ड्रीम क्या होता है, पैशन क्या होता है, स्टार्टअप होता क्या है, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, छत्तीसगढ़ में सिनेरियो क्या चल रहा है, और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं। अगर आप नेशनल लेवल पे ग्राफ्स देखो तो स्टार्टअप तो शुरू होते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए 100 स्टार्टअप शुरू हुए तो उसमें 70-80 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो उसका रीजन भी फाइंड आउट करेंगे, फेल क्यों होते हैं। बहुत बड़ी आइडिया था, बहुत अच्छा हमने इनोवेटिव आइडिया सोचा था, बहुत बढ़िया हमने प्रोटोटाइप डेवलप किया था, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, फेल क्यों हो गया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं कुछ स्टार्टअप के लाइव स्टोरीज आपको बताऊंगा, हमारे बीच के स्टोरीज, हमारे छत्तीसगढ़ के स्टोरीज बताऊंगा। दे आर डूइंग वेरी वेल। ओनली द थिंग इज कि समय का खेल था और उस समय उन्होंने एक बढ़िया सा बिजनेस मॉडल डेवलप किया। दे आर ऑन द टॉप ऑफ द फील्ड। हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, एम आई ऑडिबल क्लियरली? एनीबॉडी? मेरी आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक Yes, sir. Well, let's start. The topic is, as you know it very well, it is in the brochure. Problems, that is so-called challenges and opportunities for a startup in Chhattisgarh. Students, रितिका ने हमें जैसा बताया कि हम जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर हम BIT की बात कर रहे हैं, तो we are among the top most engineering institution of the state.
वी आर द टॉप मोस्ट, वी कैन से दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ के फैकल्टी के नॉलेज की बात करें, यहाँ के रिसर्च पब्लिकेशंस की बात करें, यहाँ के लाइब्रेरी की बात करें, यहाँ के एलुमनी की बात करें, और एट लास्ट हम यहाँ के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की बात करें, तो नो डाउट हमारा जो नंबर 1 पोजीशन है वो नंबर 1 पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से हमारे बीआईटी के स्टाफ्स को जानता हूँ, दे आर वेरी डेडिकेटेड, पहली चीज। दूसरा, हमारा जो टीपीओ सेल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है प्लेसमेंट्स के लिए। हमारे पास जो प्लेसमेंट का ग्राफ है वो शायद छत्तीसगढ़ में वो ऑफिशियल ग्राफ किसी के पास नहीं होगा। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, डॉक्टर अशोक चंद्रा देख रहे हैं, दैट इज आल्सो गोइंग ऑन वेरी वेल। तो मनीषा मैम से मेरी कई बार बात होती है, तो मनीषा मैम ने बोला कुछ स्टार्टअप पे काम कर, तो वी हैव स्टार्टेड विद नागपाल मैम, मनीषा मैम और हम सब मिलकर हमने स्टार्टअप शुरू किया। व्हाट एग्जैक्टली स्टार्टअप इज? तो ये शुरुआत होती है, कहानी जो शुरू होती है ना, स्टार्टअप की कहानी शुरू होती है हमारे इनोवेशन सेल से। हमारे यहाँ बीआईटी के अंदर एक इनोवेशन क्लब भी है, इनोवेशन सेल भी है। यहाँ पर हम आपके इनोवेटिव आइडियाज को, मतलब हम आपके सपनों को पर लगाने का काम शुरू करते हैं इनोवेशन सेल के अंदर। आपने सपना देखा, हमने आपके सपनों को पर लगाना शुरू किया कि दिस इज द रियलिटी, थोड़ा सा इसको मोल्ड करो, थोड़ा सा इसको और ऑर्नामेंटली अरेंज करो, तो आपका जो सपना है, जो आपने कंसेप्ट सोचा है, वो प्रोडक्ट में डेवलप होना शुरू हो। जब इनोवेशन सेल का काम शुरू होकर जब इनोवेशन सेल का काम खत्म होता है, तो उस प्रोडक्ट को हम वास्तविकता में लेकर आते हैं। वो प्रोडक्ट जब वास्तविकता में आता है तो उसको हम कहते हैं स्टार्टअप। ठीक है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन व्हाट सो कॉल्ड द टर्मिनोलॉजी स्टार्टअप, अभी बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, ट्रेंडी वर्ड। स्टार्टअप इज अ ट्रेंडी वर्ड। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप एंड अ कॉमन बिजनेस और एन एंटरप्राइज? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि कोई सा भी बिजनेस जो होता है ना, चाहे वो स्टार्टअप हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, वो दो चीजों के अराउंड घूमता है। यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक अपना जो है स्टार्टअप है, दो चीजों के अराउंड घूमता है। सबसे पहली चीज होती है एक प्रॉब्लम और दूसरा होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम है या किसी एक सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। इज इट ओके? किसी का एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन होगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। मैं इंडियन आर्मी में काम कर रहा हूँ और वहां पर जब मैं फील्ड पे रहता हूँ, जब मैं जंग लड़ने के लिए जाता हूँ, मेरे पास खाने पीने का कुछ सामान नहीं होता, तो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, खाने पीने का सामान नहीं, तो खाने का सामान कितने दिन तक प्रिजर्व करके रखें, ये चैलेंज आया। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट ने उस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और आज आपके पास रेडी टू ईट प्रोसेस फूड अवेलेबल है पैकेट में। पैकेट खोलो, उसको माइक्रोवेव करो, सब्जियां तैयार, पुलाव तैयार, रोटी तैयार। ठीक है, एक प्रॉब्लम था, आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन निकाला, कमर्शियलाइज किया, बिजनेस मॉडल बन गया। ये बिजनेस कभी ना कभी तो स्टार्ट होता है। ठीक है, जेम्स बॉन्ड की मूवी बहुत पहले आती थी, आप देखते थे, उसमें क्या होता था, वो जीपीएस ट्रैकिंग होता है, एक बड़ा सा कांच का शील्ड होता था, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का ब्लिंक करता हुआ लाइट जलता था, वो विलन की गाड़ी होती थी, उसके पीछे रेड कलर की ब्लिंक करती लाइट होती थी, वो पुलिस की गाड़ी होती थी। दैट वाज द इनिशियल फेज जब हम सपना देखते थे जीपीएस क्या होता है। आज हमारे बहुत सस्ते मोबाइल के अंदर गूगल ने जीपीएस दे दिया है। किसी को एड्रेस बताना हो तो क्या करते हैं, रुक जा, मैं तुझे अपना लाइव लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास पहुंच जाए। ठीक है, आप तो इनफैक्ट घर से निकलते हो और अगर आपका लॉगिन और आपके घर वाले फोन का लॉगिन एक है, तो आप किस किस रेस्टोरेंट में बैठे हो, क्या खा रहे हो, वो तक घर वालों को पता लग जाता है। दिस इज व्हाट गूगल का एक स्टार्टअप आइडिया था, इस तरीके से कनेक्ट करें। आपका फेसबुक एक स्टार्टअप आइडिया था, आपका ओला, OLX, ओयो रूम, सब स्टार्टअप आइडियाज है। तो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम लेकर अगर आप आते हैं, उस प्रॉब्लम का जेन्युइन सॉल्यूशन लेकर आते हैं, तो वो स्टार्टअप। कुछ इनोवेटिव आइडिया होता है, कुछ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, समथिंग वो पहले हो चुका है बट विद अ न्यू डायमेंशंस, तो वो स्टार्टअप है। अभी प्रेजेंट पे मैं दुर्ग में एक बच्चे के साथ काम कर रहा हूँ, पास आउट बच्चा है, मैकेट्रॉनिक्स का बच्चा है। अब ये थोड़ा सा वो रिसर्च बेस्ड, आप लोग जैसा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने बहुत बड़ी जोरदार कंसेप्ट पे मुझे कहानी सुनाई। कंसेप्ट मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा चल यार स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, इस पे रिसर्च पे जो भी खर्चा होता है वी कैन मैनेज इट, कहीं से मैनेज करेंगे। उसका प्रोटोटाइप बड़ा जोरदार वो डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है, कार के अंदर पूरे सिस्टम को कस्टमाइज कर रहा है। ठीक है, अब उसने प्रॉब्लम फेस किया। क्या प्रॉब्लम फेस किया? उसके घर में एक कार है, जब वो लेके जाता है कार को, जब वो लेके जाता है तो उसका कार का सिस्टम उसके हिसाब से होता है, पर जब उसके पिताजी लेके जाते तो लौट के आके उसको डांटते हैं, तूने क्या गाना लगा के रखा था, इतना एसी इतना ठंडा क्यों कर रहा है, तेरी गाड़ी इतनी फास्ट क्यों भग रही, इसका आवाज कैसा है, ऐसा दुनिया भर की बात। उसने कहा यार
ये सिस्टम ऐसा डेवलप करे कार के अंदर कि मैं बैठूं तो कार मेरे हिसाब से कस्टमाइज हो जाए, मेरे पापा बैठे तो उनके हिसाब से कस्टमाइज हो जाए। पुराने मॉडल की कार है, उसके अंदर उसने बायोमेट्रिक सेंसर्स लगाए, उसके अंदर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया, सब एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर अवेलेबल है, सब उसको लाइन अप किया। वो जो उसने पुराना एक मोबाइल स्क्रीन पे लगा दिया, गाड़ी ऑन होती है, मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन फेस रीड करता है कि पिताजी बैठे कि बेटा जी बैठे, उसका पूरा सिस्टम उसके हिसाब से होता है। उदाहरण के लिए जब पिताजी गाड़ी चला रहे हैं तो वॉल्यूम जो साउंड सिस्टम का 10 के ऊपर नहीं जाएगा, और जो गाने सिलेक्शन रहेंगे वो पुराने गजल जैसे गाने रहेंगे। जब पिताजी गाड़ी पे बैठ के चला रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, ये सब प्रॉब्लम रहेगा, हाई एंड म्यूजिक वाले जो हैवी म्यूजिक वाले गाने चलेंगे और वॉइस जो है वो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इस पर रिसर्च कर रहा, इस पे वो प्रोटोटाइप डेवलप करा। और सोचो अगर ये प्रोटोटाइप डेवलप होता है, ये गैजेट अगर डेवलप होता है, तो इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा एक रिवॉल्यूशन आएगा। आप कार के अंदर एक छोटा सा किट लगाओ, कार आपको पहचान लेगा और आपके हिसाब से कार अपनी चीजों को कस्टमाइज करेगा कि आपको कार के अंदर फ्रेग्रेंस कैसा चाहिए। आप बैठे हो तो फ्रेग्रेंस कैसा चाहिए, कोई और बैठ के चला रहा है तो फ्रेग्रेंस कैसा चाहिए। आप एज अ ओनर ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो कार कैसे बिहेव करेगी, आप एज अ ओनर पीछे बैठे हो, शेफर्ड ड्रिवन, आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पीछे बैठे हो तो कार कैसे आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब वो कार बार बार एहसास दिलाएगी कि आप उसके मालिक हो, वो आपके हिसाब से चलेगी। एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटा सा आइडिया लेकर वो बच्चा आया, और सोचो उस स्टार्टअप का भविष्य क्या होगा। सोचो जब वो उस आइडिया को बेचने के लिए जाएगा तो what amount he will going to get, because इस आइडिया पे कमर्शियलाइज काम करना छत्तीसगढ़ में पॉसिबल नहीं है। ये कंसेप्ट है, या तो वो जाके गूगल के साथ टाई अप करेगा, या जाके किसी कोरियन या जैपनीज या चाइनीज कंपनी के साथ टाई अप करेगा, या हो सकता है रिलायंस में जियो के साथ टाई अप करे, ये प्रोडक्ट ले आया, हो सकता है टाटा के साथ, महिंद्रा के साथ टाई अप करे। मुझे ऐसा लगता है कि he will get a very good response on those fronts। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा है, रिलायंस है, आपका अमेजॉन है, आपका अलीबाबा है, ये फंडिंग कर, ठीक है। स्टार्टअप है पेटीएम, आज के डेट में पेटीएम एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, पहले सिर्फ मोबाइल के अंदर वो रिचार्ज देता था। पेटीएम का फर्स्ट पेज खोल के देखिए, वो सोना भी बेच रहा है, वो मॉल के सामान भी बेच रहा है, वो शेयर ट्रेडिंग भी कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड भी कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पटा रहा है, वो टेलीफोन का बिल भी पटा रहा है, वो डीटीएच का बिल भी पटा रहा है। वो जो सोच सकते हो वो सब काम कर रहा है, और साथ में अपना पहला काम जो उसका था दैट वाज मोबाइल रिचार्ज करना, वो भी कर। वो क्या था, वो एक आइडिया था, वो एक स्टार्टअप आइडिया। तो हमारा स्टार्टअप में इतनी सारी कहानियां इसलिए सुना रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमने जो इनोवेटिव आइडिया लाया ना, वो मार्केट में फीजिएबल है कि नहीं, उसका मार्केट एक्सेप्टेंस क्या होगा, ये अगर हम स्टडी करते हैं तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माइंड इट, मेरी एक बात गांठ बांध लो कि आज के डेट पे आपको फंड्स प्रॉब्लम नहीं होते। ये बिल्कुल भूल जाओ कि मैं स्टार्टअप नहीं कर सकता, स्टार्टअप नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास जेन्युइन आइडियाज हैं, आपके पास उन आइडियाज को प्रेजेंटेशन करने का स्किल है, तो आपको जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा पैसा मार्केट में है, इन्वेस्टर्स मार्केट में है। रायपुर शहर में भी ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो आपके बिजनेस आइडिया के पीछे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार। हमारे रायपुर में बैठे हैं, दुर्ग में डेफिनेटली बैठे होंगे। जिनके पास पैसे हैं उनको आइडियाज चाहिए बिजनेस के लिए। सुमित ग्रुप को हमारे यहाँ का एक पास आउट स्टूडेंट आइडिया दिया, उसने जब आइडिया दिया तो सुमित ग्रुप ने उसको 40% का बिजनेस पार्टनर बनाया एंड दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। सुमित नाम सुना ना, सुमित बाजार, सुमित ज्वेलर्स। दिस इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट। तो सबसे पहली चीज है, फंड्स इशू नहीं होते स्टार्टअप के लिए, आपके पास एक जेन्युइन सॉलिड आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया ऐसा होना चाहिए जो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार सर, थोड़ा सा अगर लंबा चलेगा ना तो क्लोज करने के पहले 5 मिनट पहले मुझे बता देना, मैं समाप्त कर लूंगा। इज इट ओके सर? श्योर सर, श्योर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। अब जो हमारा टॉपिक है स्टार्टअप के बाद अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद चैलेंजेस, उसके बाद छत्तीसगढ़। ये 4 कंटेंट, ये जो हेडिंग है ना, इन 4 चीजों का बनाओ, तो इन 4 चीजों पर डिस्कस करेंगे आज के सेशन पे। बाकी जैसे आगे जरूरत पड़ती जाएगी, जैसा नागपाल मैम, मनीषा मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे, उस तरीके से हम उस चीजों को उस डायरेक्शन पे फ्लो करेंगे। कभी हम फंड्स की बात करेंगे, कभी मार्केट रिसर्च की बात करेंगे,
कभी प्रोडक्ट फिजिबिलिटी की बात करेंगे, कभी टेस्ट मार्केट की बात करेंगे, कभी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की बात करेंगे, कभी हम इसको पेटेंट कराने की बात करेंगे, कभी इसके पीछे हम प्रोडक्ट के पीछे प्रोडक्ट टेस्टिंग की बात करेंगे। जैसा रिक्वायरमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम या तो किसी स्पेशलिस्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे या हम अपने बीच से ही इस चीज को आपको सॉल्व करेंगे। स्टार्टअप होता क्या है? स्टार्टअप और बिजनेस में बेसिक अंतर होता है। स्टार्टअप मतलब समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, समथिंग विद अ वेरी न्यू एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट स्टार्टअप इज। स्टार्टअप के साथ क्या होता है? स्टार्टअप के बाद एक किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है, जिसको मैंने पहले बताया, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब वो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट जब कमर्शियलाइज होता है, उस प्रोडक्ट को जब मार्केट में सही तरीके से, सही समय पर, सही जगह पर, सही कीमत के साथ लॉन्च किया जाता है, तो एक स्टार्टअप बिजनेस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा। बात ये है कि कैसा भी बिजनेस हो, ये एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन का स्टेटमेंट जो मैंने हमेशा याद रखा, आप भी याद रखिए। कोई सा भी व्यापार फलने फूलने के लिए या एस्टेब्लिश होने के लिए 1000 दिन का समय। 1000 दिन मतलब मोटा मोटा 3 साल के आसपास का समय। और जितने स्टार्टअप फेल होते हैं ना, वो पहले साल खत्म होते तक फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता, उनके पास बैकअप सपोर्ट नहीं होता, उनके पास कोई मोटिवेशनल फैक्टर नहीं होता कि वो आने वाले 2 साल और उस बिजनेस को खींच ले। अगर 3 साल आपने बिजनेस खींच लिया, ये मान के चलो वो स्टार्टअप एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा ही। इट इज समथिंग लाइक किसी छोटे से किसी पीपल के पेड़ को एक समय तक 6 फुट 7 फुट हाइट आते तक अगर आपने बचा लिया बकरियों से, गायों से, तो मान के चलो वो ऐसा विशाल वृक्ष बनेगा जो हजारों लोगों को छाया देने का काम करेगा। तो ये स्टोरी से स्टार्टअप के साथ है। तो ट्रेडिशनल जो बिजनेसमैन कहते थे 1000 दिन किसी भी व्यापार को संभालने में लगता है, ये बात आप गांठ बांध लो। अगर स्टार्टअप में तुम रहे हो तो शुरू के 1000 दिन डिमोरल करेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, ये तो तय है। आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना। कई बार आपके पास फाइनेंशियल क्रंचेस आएंगे, कई बार आपसे छोटे छोटे लोग आगे बढ़ते दिखेंगे, और आपको अपना ड्रीम नहीं छोड़ना है। मैडम ने बात कहा ना ड्रीम, और ड्रीम नहीं छोड़ने के लिए जो दूसरा वर्ड मैडम ने यूज किया उसको भी हमेशा याद रखना, उसको कहते हैं पैशन। ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे मेन चीज क्या होती है स्टूडेंट्स, जो मेन प्रॉब्लम आता है जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया होगा आपके सीनियर्स ने या जो मार्केट में इंटरव्यू देते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा रिसर्च किया, मैंने बहुत अच्छा प्रोटोटाइप डेवलप किया, मैं जितने कंपटीशन पे अपने इनोवेटिव आइडियाज को लेकर गया वहां पर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट को फंडिंग भी अच्छी मिली, और मेरा प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, 6 महीने में मैं नहीं चला पाया। अब इतनी सारी अच्छी चीजें बोल के आखिरी में जो वर्ड तुमने यूज किया ना, उससे पूरा बिजनेस खराब हो गया। तो व्हाई प्रोडक्ट फेल? कोई सा भी प्रोडक्ट फेल क्यों होता है, एक ओवरव्यू बताता हूँ। प्रोडक्ट तो सही है, तुमने बनाया है, तुम्हारे इनोवेशन सेल ने उसको ओके किया है, उसके पीछे जो तुम्हारा गवर्नमेंट एजेंसीज है उसको फंडिंग दे रही, मतलब प्रोडक्ट सही है, एग्री कर रहे हैं। पर प्रोडक्ट फेल क्यों हुआ? उसके फेल होने का कारण अपने अंदर ना ढूंढो, मार्केट में ढूंढो। क्या हो सकता है? प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया और मार्केट कैसा था? मार्केट था गलत, हमने गलत मार्केट सेलेक्ट किया। एग्जाम्पल चाहिए? एग्जाम्पल है टाटा नैनो। प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, प्रोडक्ट बनाया था गरीब लोगों के कार के रूप में, और वो कार किसने खरीदा? एक पैसे वाले आदमी ने खरीदा, जिसका वो सेकंड कार था। गलत मार्केट पे गया, वो प्रोडक्ट आउट हो गया। फिर जो हमारी मार्केटिंग, जो मार्केट था हमने गलत सेलेक्ट किया। दूसरी चीज, हमने जो फाइनेंसिस की बात करी, हमारे पास पैसे बहुत आ गए, तो जिन जगहों पर हमको उस पैसों को लगाना नहीं हमने वहां लगा, और हमारा वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया। ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैसे उसको वर्कआउट करना, पैसे कैसे आए अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा एचआर, हम क्या करते हैं, जोश में बहुत ज्यादा हाईली सैलरीड लोगों को रख लेते हैं, या एचआर को बहुत उल्टा सीधा खर्च, क्यों आगे बता रहे क्यों होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। एचआर हो गया। फिर मैं क्या किया, मैंने जरूरत से ज्यादा हाईटेक प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप कर लिया। चीजें अच्छी हैं, पर मार्केट में मुझे शुरुआती दौर पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, एक इंडस्ट्री लाइफ साइकिल होता है, एक बिजनेस लाइफ साइकिल होता है। तीनों साइकिल मैंने नहीं पढ़ा और मैंने हैवी इन्वेस्टमेंट करा। तो ये मान के चलो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत भारी पड़ने वाला है, और वो कन्वर्ट होने वाला है लॉस पे। तो ये भी हम स्टडी करेंगे। बिजनेस इज समवट वेरी डिफरेंट थिंग, टेक्नोलॉजी इज समवट वेरी डिफरेंट थिंग, idea is somewhat again very different thing, innovative things are again something very different। इन सबको जोड़े कैसे, इन सबको सिंक्रोनाइज कैसे करें, ये हम स्टार्टअप क्लब के अंदर आपको बताएंगे, ठीक है।
तो मैंने देखा कि गलत मार्केट में मेरा प्रोडक्ट चला गया, मैंने देखा कि जो मार्केट का मैंने स्ट्रेटेजी बनाया वो गलत हो गया, मैंने देखा कि फाइनेंस, एचआर या प्रोडक्शन में किसी डिपार्टमेंट में कमजोर था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट पर लॉन्च करने का समय अगर गलत है तो आपको हिट होने से मतलब आप हिट हो ही नहीं सकते। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा। अभी हम एक बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट हमारा 2020 में लॉन्च हो जाना था। हमने सोचा था अप्रैल 2020 में लॉन्च करेंगे। आज अप्रैल 2021 चल रहा है, हमने आज तक लॉन्च नहीं किया। टाइमिंग करके लिए मैं आपको आगे एग्जांपल में बताने वाला हूं। ठीक है, इतनी सारी बातें करने के बाद माहौल थोड़ा सा लाइट करते हैं। मैं आपको इनको बढ़िया से एग्जांपल्स बताता हूँ स्टार्टअप होता कैसे। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे क्लाइंट है, उनका लड़का करीब 18-19 साल का होगा। मेरा जो क्लाइंट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, फल सब्जियां उगाते हैं और फल सब्जियां उगा के वो छत्तीसगढ़ में नहीं बेचते, वो मिनी ट्रक होती है उसमें भर के सीधा नागपुर मंडी पे, वो भी ऑर्गेनिक शॉप पे बेचते हैं। उनका भी नागपुर के अंदर प्राइम लोकेलिटी में एक शोरूम है, सब्जियों का शोरूम है। तो दुर्ग जिले में वो सब्जी उत्पादन करते हैं ऑर्गेनिक, और वो कहते भैया मुझे छत्तीसगढ़ में नहीं बेचना। उनकी ट्रक भरती है, ट्रक भरने के बाद उनका माल सीधा नागपुर की मंडी में जाता है। मंडी से निकल के उनका माल जो उनको शोरूम पे जाता है वहां बिकता है। ही इज गेटिंग वेरी गुड मनी आउट ऑफ इट। उनका बेटा 18 से 19 साल उम्र होगी, आया, अंकल अंकल मुझे एक नया बिजनेस करना, बताओ क्या कर सकते हैं। बोला बेटा तू तो बिजनेसमैन है, तू मुझे बता क्या करना चाहता है। बोले मैं ना पापा के बिजनेस में कुछ नया करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बोला क्या करना चाहता है। उसकी पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं थी बच्चे, तो बीकॉम करके छोड़ दिया था या बीकॉम कर रहा था, समथिंग लाइक दैट। मैंने उससे पूछा तो बट ब्रिलियंट ब्रेन, ब्रिलियंट मतलब ब्रिलियंट ब्रेन। तो उसने बोला कि अंकल अपन एक काम करेंगे। बोला बोल बेटा क्या काम करना। अंकल जो पापा ना जो सब्जियां जो है या फल जो है ना वो जो प्रोड्यूस करते हैं, मैं मेरे खुद के फार्म हाउस में चीकू उगता है, देन मेरे खुद के फार्म हाउस पे एप्पल होता है, उसके बाद मैंगो होता है, तो ये सब फल होते हैं। इन क्यों ना अंकल इस फल को हम डिहाइड्रेट करें, डिहाइड्रेट करके एक पैकेट के अंदर डालें। और क्या है ना, मम्मी मुझको बहुत फल खिलाने के लिए परेशान रहती है, तो वो फल कभी मिला कभी नहीं मिला, तो एक काम बढ़िया सही हो जाएगा। वो फल का पैकेट खोला, डिहाइड्रेट किया, मतलब उस फल की सुखड़ी बना दी, लोकल लैंग्वेज पे सुखा दिया। तो जैसे ही फल को सुखा दिया उसके अंदर की ह्यूमिडिटी एक्सट्रैक्ट कर ली, बिना प्रिजर्वेटिव के आराम से उस फल को एक पॉलीथीन के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर में 4 महीने 5 महीने 6 महीने रख सकते हो। ये डिपेंड करता है, टेस्ट करो प्रोडक्ट का बेसिक कंपोनेंट क्या उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे अंकल, इसको ना कॉर्नफ्लेक्स के साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स डाला, उसके अंदर शुगर कोटिंग कर दी, और ये फल को छोटे छोटे काट के डाल दिया, एक छोटा सा सैशे बना दिया। वो सैशे क्या है, बच्चे को कॉर्नफ्लेक्स करना है, वो सैशे का उसमें एक बॉल के अंदर दूध है, उसके अंदर उस सैशे को डाला, थोड़ा देर छोड़ा, जो फल है उसके अंदर ह्यूमिडिटी आ गई, कॉर्नफ्लेक्स के अंदर ह्यूमिडिटी आ गई, वो खाने लायक हो गया। और शक्कर का तो कोटिंग था, तो उसको सिर्फ थोड़ा सा मिक्स किया तो मीठा भी हो गया, हमने उसको खा लिया। मैंने बोला यार तो ये सब तो कॉर्नफ्लेक्स वाले म्यूसली बनाने वाले काम करते हैं। अंकल करते तो है, पर ये काम हमारे लेवल पे पहना होगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं, वो सब छोटे छोटे रखते हैं, हम तो फल के साइज बड़े कर रहे हैं। वो क्या रखते थे, देखो रिसर्च करके आया था बच्चा। वो क्या करते हैं, म्यूसली बनाने वाले उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स रखते हैं। अंकल मैं यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स रख रहा हूँ। वो बोला यार बॉस बात तो सही कह रहे हैं, लेट अस गो अहेड, इस पे काम शुरू करें। जब वो अगली बार बंदा मेरे पास आया ना, तो विश्वास नहीं करोगे, एक सैशे लेकर आया, तो बोला अंकल ये है, ये टेट्रा पैक दूध भी लेके आए या बाउल भी लेके, आप टेस्ट करो मुझे मार्केट को कितना होगा। तो बात करते करते सैशे खोला, बाउल पे डाला, दूध डाला, हम लोग बात करते, बोले एक स्पून खा के देखो। मुझे ऐसा लगा अभी फ्रेश काट के मुझे फल दिया गया हो, उसमें डाला गया हो और मैं कॉम्प्लेक्स खा रहा हूँ। इसने प्रोडक्ट बनाया। अब बोला अंकल इसको बेचू कैसे, ठीक है, तो बेचू कैसे वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ ही इज वर्किंग वेरी वेल। पूरा प्रोडक्ट यहाँ बनाता है, क्योंकि गुजरात बेस्ड गुजराती बंदा है, पूरा प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ में बनाता है। गुजरात के 4-5 मॉल के अंदर उसने टाई अप कर लिया है, तो वहां से अपना सामान बेच रहा है। ही इज गेटिंग वेरी 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 गुड। ठीक है, एक स्टोरी स्टार्टअप। तो फल को काट के डिहाइड्रेट किया। अभी जो डिहाइड्रेशन का मशीन है ना, वो क्या होता है, जैसे अपन ब्रेड का रस्क बनाते हैं ना, टोस्ट बनाते हैं, तो क्या होता है उसकी ह्यूमिडिटी खींच लिया और टोस्ट बन गया, और उसके अंदर फिर ह्यूमिडिटी डालो तो टोस्ट फिर से ब्रेड बन जाता है। तो यही प्रोसेस में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। वो बंदा काम करने के बाद 6 महीने बाद मेरे पास आया, अंकल अंकल अब ना मैं ये माल बेच के बोर हो गया, अब मैं क्या बेचना चाहता हूँ। मतलब बेटा क्या बेचना चाहता है, मैं तो डिहाइड्रेटिंग मशीन बना के बेचना चाहता हूँ। अब मैंने अपना मोबाइल बंद किया, लैपटॉप बंद किया, मतलब बोल क्या बोलता है, क्योंकि मुझे लगा नहीं इस बच्चे से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा।
ठीक है। तो उसने क्या बताया, अंकल देखो ओटीजी मशीन होता है, मैंने क्या किया अभी घर में ओटीजी मशीन के साथ में एक एग्जॉस्ट लगा दिया। अब उसका टेम्परेचर थोड़ा, उसके अंदर 4 रॉड होते हैं, चारों रॉड काम करेंगे तो वो उसको रोस्ट करने का काम करेगा। जो चीज है मैंने 3 रॉड हटा दी, एक हीटिंग रॉड है और एक तरफ से हवा मतलब हवा अंदर आएगी, दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट हो जाएगी, बीच में थोड़ा देर रहेगा, वो उसका ह्यूमिडिटी हटाएगा। तो फिर क्या हुआ अंकल, अब ना मैं जो पहले मेरे पास 7.5 लाख का डिहाइड्रेशन मशीन था, डिहाइड्रेट करने का मशीन था, मैंने क्या किया 2000 का ओटीजी खरीदा, मॉडिफाई करने के बाद 3000 में मैंने बना लिया। दैट्स वेरी गुड यार, दैट्स अगेन रियली वेरी गुड। तो अंकल मैं क्या करना चाहता हूँ ना, मैं ओटीजी मशीन को 2 पार्ट पे बनाना चाहता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पे। पार्ट 1 पे वो डिहाइड्रेट करेगा और डिहाइड्रेट करने के बाद घर वाले उसको प्लास्टिक कंटेनर के अंदर सामान को पैक कर लेंगे और जब भी उनको यूज करना होगा पार्ट बी ह्यूमिडिफिकेशन करेगा, मतलब डिहाइड्रेट का उल्टा हाइड्रेट करेगा। कैसे करेगा, इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, थोड़ा सा फिल्टर वाटर एक जगह एक कंटेनर पर डालेंगे, वहां से थोड़ा सा स्प्रिंकलिंग होता रहेगा, अंदर उसके अंदर थोड़ा सा रोटेशन प्रोसेस मैंने डाल दिया, उसके बाद एक ब्लोअर अंदर की तरफ डाल दिया जो वेट एयर अंदर कर रहा है, जैसे कूलर से हवा जाती है। थोड़ी देर उसको रखने के बाद टाइमर काम करेगा, जैसे ही अलार्म बजा मतलब आपका फल वापस से ह्यूमिडिफाइड होकर तैयार। दैट्स समथिंग ऑफ द ट्रैक ऑफ द मार्केट। अब ये दिमाग आज तक मुझे नहीं लगता पूरे भारत में किसी ने लगाया हो। कॉम्पैक्ट, मैंने बोला बेटा कॉस्टिंग क्या रखेगा, बोले अंकल अगर मैं इसको छत्तीसगढ़ में बनाता हूँ तो मेरा पूरा प्रोडक्ट हाई एंड सब सामान असेंबल करके 5 से 6 हजार में तैयार हो जाएगा। तो मैंने बोला बेचने का क्या रेट रखा है बेटा, बोला अंकल मैं 21,000 में बेचूंगा और किसी को मार्जिन नहीं दूंगा, ऑन कॉस्ट बेचूंगा अमेजोन पे। तो कैसे करेगा, बस कुछ नहीं करना है, मुझे एडवर्टीजमेंट पे बढ़िया सा वीडियो बनाना है और अमेजोन पे बेचना है। ना मेरा कोई होलसेलर होगा, ना मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ना मेरा कोई शोरूम होगा, बस मैं, मेरा प्रोडक्ट, मेरा एडवर्टीजमेंट और मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर्स का रिव्यू ओवर। वो काम कर रहा है। जैसे उसका काम खत्म होता है, क्योंकि अभी कोरोना का काल 1 साल से चल रहा था, हमने कहा स्लो डाउन कर ले बेटा, थोड़ा सा बाद में करेंगे। ये मान के चलो अगले साल 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसके पहले वो बच्चा ये प्रोडक्ट मार्केट पे लॉन्च कर। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 18 से 19 साल का लड़का है। बिजनेस मॉडल सोचो, ये कह रहा है स्टार्टअप प्रोडक्ट, कितना खर्च हुआ। अब ये कहानी जैसे ये बच्चा, देखो इसको आप कॉपी कर सकते हो, मैं ओपनली बता रहा हूँ, पर इस कहानी के साथ उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार है, इस कहानी के साथ उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी तैयार है, इस कहानी के साथ उसकी एचआर स्ट्रेटेजी तैयार है, इस कहानी के साथ उसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी तैयार है। तो तुम इस आइडिया को कॉपी भी कर लोगे तो तुमको वो मार्केट से उड़ा देगा। व्हाट द पॉइंट, ये होता है स्टार्टअप का आइडिया, ये होता है बिजनेस मेंटालिटी। ये कहानी वो अपने पिताजी को आज तक नहीं सुनाया, बोला पापा को सुनाऊंगा तो पूरा पैसा पापा दे देंगे। ये बोलता है अंकल ये ना मैं कुछ पापा के फ्रेंड्स हैं उनको सुनाऊंगा, अब मैं इस पे स्टार्टअप फंडिंग अपने बलबूते पे लाना चाहता हूँ, मुझे सरकार से मदद चाहिए। मैंने बोला बेटा मैं भी लगाने को तैयार हूँ। सोचो उस बंदे ने मुझे, मैं कंसल्टेंट हूँ, मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया। मैंने कहा पापा से मत मांग, अपन दोनों मिलकर काम शुरू कर। That was the level of confidence of the boy, a young boy. That was the level of thought process. That was the level of research he has done. That was the level of innovative ideas what he has gone through. तो ये क्या हुआ, ये मैंने आपको एक स्टोरी बताई डिहाइड्रेशन का। वैसे एक बंदा है, वो रायपुर में सोलर प्लांट्स होते हैं ना, अभी रायपुर के अंदर एक आईकॉन करके कंपनी जो सोलर सेल असेंबली का काम करती है। वो क्या करती है, पहले चाइना से सेल्स लेकर आती थी, प्लेट के अंदर असेंबल करती थी और असेंबल करने के बाद वो मार्केट में बेचती थी। आईकॉन नाम है। अब ये जो बंदा है दैट इज एवर्ट सॉल्यूशन, ये बंदा उस सेल मैन्युफैक्चरिंग का, जो सेल मैन्युफैक्चरिंग आज के डेट में पूरे भारत में रिलायंस करती है और एक और कंपनी करती है। ये सिर्फ 20% सप्लाई करते हैं, 80% आज भी चाइना से, कोरिया से और जापान से जो माल आता है। तो ये बंदा रायपुर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क है उसके अंदर यूनिट डाल रहा है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का। सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, मैं यहाँ पर असेंबलिंग नहीं किया। बंदा मात्र बीकॉम ग्रेजुएट, प्रोडक्ट हाईटेक प्रोडक्ट, कैसे कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, कैसे पॉसिबल होगा, इस स्टोरी को हम आगे डिस्कस करेंगे। उसकी कॉस्टिंग कैसे बैठेगी, वो चाइना के कट थ्रोट कंपटीशन को फाइट कैसे करेगा, सब हम डिस्कस करेंगे।
he is having all the plans, backup plans सब ready. तो ये मैंने आपको जो स्टोरीज बताई ना, स्टोरीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने आइडिया को सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल तरीके से सोचो. एक बड़ा कॉमेडी सा बात बता रहा हूँ, ये मैंने एक जगह कोटेशन भी लिखा था और लोगों को बताया भी. मेरे दिमाग में खूब पैसा है, मेरे दिमाग में खूब पैसा है, अब मुझे बस एक प्रोसेस अपनाना है जिससे वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट पे जाए. ये एकदम सिंपल सा तरीका है आइडिया को बिजनेस पे चेंज करके पैसे कमाने. मेरे दिमाग में खूब पैसा है और वो पैसा यूजलेस है. वो पैसा कब यूजफुल होगा? जब वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में दिखने लगेगा, क्रेडिट. अगर इस तरीके से सोचते हो ना तो तुमको पीछे, मतलब कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता, तुम हमेशा आगे जाओ. तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, जो तुमने आइडिया बनाया, जो तुमने सोचा है, उसको तुम दिमाग पे रखो कि वो हार्ड कैश है. तुमको सबीर भाटिया को किससे मालूम है जिसने ईमेल बनाया था? ईमेल बनाया था उस समय, मतलब हाई फाई आदमी हुआ करते थे. आपके क्या नाम था इनका, माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है, तो नाम भूल रहा हूँ मैं इनका, जल्दी बताओ, नाम बताओ. बिल गेट्स. ठीक है, तो बिल गेट्स उनसे मिलने के लिए उनको अपॉइंटमेंट देके समय देके सबीर भाटिया एक इंडिया ने जिसने ईमेल बनाया था, और वर्ल्ड का पहला ईमेल लॉन्च हुआ. एक आइडिया था जिसमें एक आइडिया था, उसके साथ छोटा सा सॉफ्टवेयर का काम किया और उस आइडिया में उस आदमी को खराब कर दिया. ईमेल का बिजनेस जो है ना, दैट वाज हॉटमेल, द नेम वाज हॉटमेल बाय समीर भाटिया, sold to the Microsoft and having a very good talk with so-called Bill Gates. ठीक, अब ये बात तो हो गई व्हाट स्टार्टअप इज. इसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज, है ना. क्या अपॉर्चुनिटीज छत्तीसगढ़ में? ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्लान गजब फंडिंग से, मुद्रा योजना से लेकर दुनिया भर के फंड्स अवेलेबल है सरकार के पास. CSIDC, DIC, MSME, उसका तुम्हारा सिटकॉन, उसका तुम्हारा जो स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, फूड प्रोसेसिंग काउंसिल, दुनिया भर के जगह पैसे पड़े. सरकार के पास अथाह पैसा पड़ा है तुम्हारे पीछे इन्वेस्ट करने के लिए ताकि तुम बिजनेस शुरू करो. बैंक्स के पास अथाह पैसा, बैंक जो है ना वो, उसको ज्यादा पैसा रिटर्न मिलता है अगर इस तरीके की लोन देती. घर का लोन, पर्सनल लोन, उससे ज्यादा उनको मजा आता है बिजनेस लोन देने. ठीक है, ये हो गया, ये अपॉर्चुनिटीज हो गई. स्टेट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो फेवरेबल है. जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती है, जो बजट्स बनते हैं ना, जो पंचवर्षीय योजना तो पुरानी बात है, बजट्स बनते हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं स्टार्टअप्स के लिए. और जो हमारा स्टेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट है, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा गजब का डेवलप है. किसी भी हाईटेक बिजनेस के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. जैसे हमारी इंजीनियरिंग की बात करें, बिजनेस के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. पहला होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, और दूसरा होता है मैन पावर. यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे वाकई एफिशिएंट, ठीक है, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा मतलब वो बेसिकली वो हमारे छत्तीसगढ़ का नेचर है कि लोग हेजिटेट करते हैं. बाकी वी आर हैविंग अ क्रीम सो कॉल्ड आवर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में जिसको हम ले सकते हैं. एक कहानी बताता हूँ. ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था आज से करीब 7 से 8 साल पहले, और भी पुरानी बात होगी. वो स्टूडेंट बोलता था, सर मैं ना दुर्ग में एक पेन ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूंगा. तो बोला, यार तू फ्लॉप हो जाए. नहीं सर, मैं दुर्ग में पेन ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूंगा. बड़ा जिद्दी किस्म का बच्चा था. जैसी क्लास खत्म हो 4:30-5 बजे मेरे पास आके सामने बढ़िया, सर मुझे बताओ, मुझे यूनिट डालना है. उसका एक भाई लंदन में था, बिजनेस कर रहा था, बोला चलो पूरा टेक्नोलॉजी मैं चाइना से खरीद के तुमको देता हूँ, तुम दुर्ग में अपना यूनिट डालो. तो बेसिकली मैंने बोला, यार पेन ड्राइव अकेले का काम मत कर, कुछ और काम शुरू कर. तो उसने 2 काम और शुरू किया. पहला, जो तुम्हारा मॉडेम के अंदर उस समय पुराना मॉडेम आता था, 56 kbps का मॉडेम आता था, उसका सर्किट बनाना, और दूसरा इथरनेट कार्ड बनाना. तो 3 काम उसने दुर्ग में शुरू किया. जिसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था. इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ बच्चे हायर किया, उनको ट्रेनिंग के लिए चाइना भेजा, चाइना से लेकर आया, पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट डाला और उसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया. उस समय 2 GB का पेन ड्राइव बनाता था. 2 GB की बहुत बड़ी चीज होती है, 2 GB की कोई वैल्यू नहीं. ठीक है, सब अच्छा चल रहा था. फिर एक दिन बिल्कुल मुंह उतार के मेरे पास आया, बोले सर नहीं कर पा रहा हूँ, लॉस पे जा रहा हूँ, मतलब कोई खरीदने को तैयार नहीं. मुंबई मंडी बंद है, दिल्ली मंडी, दिल्ली का तो चोर बाजार वाले भी लेने को तैयार नहीं, लोकल वाले. क्या करूँ समझ में. बोला यार मामला सीरियस है, कितने पैसे फंस गए. उसने अमाउंट बताया, सर इतने पैसे फंस गए, भाई तो मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ, मैं कैसे करूँ समझ में. बोला कुछ मत कर,
ये क्या था, प्रोडक्ट सही था, मार्केट रॉन्ग, डायरेक्ट अप्रोच मार्केट। मैंने बोला कुछ नहीं करना बेटा, थोड़ा सा इन्वेस्ट मेरे बोलने पे कर। बोले क्या करूँ सर? तू तुरंत भाग चाइना, चाइना में कंपनी रजिस्टर कर इसी नाम से। अब यहाँ से माल उठा, शिप कर चाइना, चाइना में उसको लेबलिंग कर, वापस ला इंडिया। व्हाट द पॉइंट? चाइना में लेबलिंग, माल पूरा बन रहा था दुर्ग में, शिप हो रहा था कंटेनर में भर के चाइना, चाइना में मेड इन चाइना का ठप्पा लग रहा था, वापस इंडिया आ रहा था। अब जो लोग रिजेक्ट किए थे वो खत्म हो गए। मतलब मुझे कैरम में क्वीन कवर करना है तो मैं रिबाउंड में क्वीन कवर कर रहा हूँ। मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करी, जब मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करी तो मैंने उसमें मार्क चेंज किया। अब वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग उठा के थाने के आसपास एक जगह पे ले गया है, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पेनड्राइव वेंड्राइव उसके लिए सब आउटडेटेड चीज हो गई। अभी उससे मेरी बात हुई थी तो वो कह रहा था जो टच स्क्रीन होता है ना, मोबाइल के अंदर जो टच स्क्रीन होता है वो बनाऊंगा और एक्सक्लूसिव एमआई के लिए। अपने बीच का बच्चा, जब मैं उससे बात करता हूँ, उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखता हूँ तो मेरा मुंह खुला रहता है। वो नहीं, मेरे यहाँ का बच्चा जो 2 लाइन बोल नहीं सकता, एंड ही इज हैविंग दैट अ ब्रिलियंट आइडिया। ये स्टार्टअप के अंदर पावर होता है, ये मार्केट के अंदर का पावर होता है जो आपके अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, हम बात करते हैं चैलेंजेस का। चैलेंज का बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखो जो भी प्रोडक्ट मैंने स्टार्टअप का जो भी बिजनेस आइडिया लेके आया, उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई बिजनेस जो होता है वो चल रहा होता है। तो वो कहलाता है मार्केट। उस मार्केट के अंदर कोई ना कोई चीज अवेलेबल होती है। ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट के रूप में आप आते हो तो वो एक कॉम्पिटिशन थ्रो करता है। उस कॉम्पिटिशन को कैसे फाइट करें, ठीक है, बहुत कठिन होता है। आप सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आए तो बहुत अच्छी क्वालिटी का लेकर आए, कोको कोला वाले और पेप्सी वाले आपको मार्केट में एग्जिस्ट करने होते, क्योंकि उनका मार्केट शेयर है। जो सॉफ्ट ड्रिंक पिएगा ना आपसे, वो उन्हीं का मार्केट का बंदा आपकी तरफ आएगा तो उनका सेल्स गिरेगा। वो खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं, हम यहाँ पर लाखों रुपए में नहीं उतरे, तो हम उनको कैसे फाइट करें, क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ऐसा कोई मिजरेबल डिजीज भी नहीं है, क्योरेबल है, ये सॉल्व हो जाता है। थोड़े से आइडियाज चेंज करो, थोड़ा सा मार्केट चेंज करो, थोड़े से डायमेंशन चेंज करो। कंपटीशन खत्म हो गया, मोनोपोली जब तक पैसा कमाओ, जैसी मोनोपोली खत्म हुआ कोई दूसरा प्लेयर आ गया तो आप क्या करो, अपने स्ट्रेटेजीज पे रीथिंक करो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैलेंज क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, बिजनेस का एक्सपीरियंस, देखो आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हो, बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हो, बट बिजनेस नीड्स एन एक्सपीरियंस। जब तक बिजनेस में धक्के नहीं खाओगे, जब तक ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे, जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, तो तुमको प्रॉब्लम की। तो दूसरा प्रॉब्लम क्यों फेल होता है स्टार्टअप, उसके पीछे प्रॉब्लम होता है एक्सपीरियंस की। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या होता है, आपके पास बैकअप सपोर्ट नहीं होता। जब आप थक गए, हार गए, कमरा बंद करके जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, तो बिल्कुल पाने वाला बंदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स या तो अपने बिजनेस पे थोड़ा सीरियसली इन्वॉल्व होते हैं, या अगर सर्विस फैमिली को बिलोंग करो तो उनको समझ भी नहीं आता कि बिजनेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे ज्यादा डिमोरलाइज होते हो, और ये समय कब आता है, आपका स्टार्टअप शुरू होने के 6वें से 8वें महीने से आना शुरू होता है। मैंने कहा ना 1000 दिन तक उसको बचा के। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, जहां पर ये स्टार्टअप क्लब आपके लिए बनाया गया है। जो हमारा कॉलेज का ड्रीम था ना, क्यों बनाया गया स्टार्टअप क्लब, वो है ये चौथे प्रॉब्लम को सॉल्व करने। चौथा प्रॉब्लम क्या होता है, यू नीड अ मेंटर। मेंटर की जरूरत पड़ती है, यू आर, जो आपको हर स्टेप के अंदर बताए बेटा ये गलत है, ये सही है, इसको इस तरीके से रिवाइव करो, इसको इस तरीके से रीडिजाइन करो, इसको इस तरीके से रीथिंक करो, इसको इस तरीके से रिलॉन्च करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक अगर मेंटर अच्छा मिल गया तो आपको पीछे कोई नहीं ढकेल सकता, आप आगे ही आगे चलते जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कैसे स्टार्टअप चलेंगे। ठीक है, आप फोटो सेल पे काम करो, सोलर पैनल्स पे काम करो, बहुत अच्छा चलेगा। आप फूड प्रोसेसिंग पे काम करो, बहुत अच्छा चलेगा। आप इरिगेशन सिस्टम पे, इरिगेशन फैब्रिकेशन पे, उस पर रोबोटिक्स डाल के काम करो, बहुत अच्छा चलेगा। तो छत्तीसगढ़ में जो ट्रस्ट एरिया है, छत्तीसगढ़ में जो बेसिक डिमांड है, जो प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में अगर आप स्टार्टअप लेकर आते हो तो सर आंखों पर आपको सरकार भी रखेगी, ताकि लोकल सोसाइटी भी रखेगी, और आप मार्केट में हिट हो जाओगे। छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, एक तो 2 प्रोडक्ट है ना, एक एप्पल बेर का बड़ा वाला बेर,
ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ऐसा कोई बेर नहीं आता था जो आता है ना बड़ा वाला बेर, वो एप्पल बेर जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहा है। दूसरा, बड़े बड़े साइज के गुआवा जो हम खा रहे हैं, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में जिसकी पैदावार होती है यहीं पर लोकल, उसमें क्या किया गया, एप्पल का थोड़ा सा डीएनए डाला गया, गुआवा का थोड़ा सा डीएनए डाला गया, नाशपाती का थोड़ा सा डीएनए, मतलब मुझे वर्ड्स तो टेक्निकल वर्ड्स समझ नहीं आते, प्रॉपर्टीज डालेकर वो प्रोडक्ट बनाया गया, और आज वो प्रोडक्ट 100 रुपए किलो से कम में बिकता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों पे अगर आप काम करते हो, जैसे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, काफी सारी इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है, हमारा सीमेंट इंडस्ट्री है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज है। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, अगर आप किसी इंडस्ट्री के लिए कोई सॉल्यूशन लेकर आते हो, ऑटोमेशन मोड पे लेकर आते हो, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कुछ नया सॉल्यूशन लेकर आते हो, तो वो स्टार्टअप को चलना ही चलना, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ का बहुत सपोर्टिव है। कभी कभी देखो कोई सी भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी हु इज इन द गवर्नमेंट साइड, दे आर सपोर्टिव, उनको सिर्फ छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट चाहिए, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज हो गया। और छत्तीसगढ़ का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ का जो वर्क स्टाइल है, वो बड़ा कंफर्टेबल है, ठीक है, तो इसमें कोई दौड़ भाग नहीं है। लोग तो मुंबई में एक कोने से दूसरा कोना 50-50, 60-60 किलोमीटर मूव करते हैं, आपको तो रायपुर से भिलाई, भिलाई से रायपुर, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, छोटा सा स्टेट है, छोटे से मूवमेंट पे चीजें खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गई। स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स है, पर मुझे लगता है कि समय कम है, उन एग्जांपल्स को हम बाद में टच करेंगे। ठीक है, लेट अस हैव अ कंक्लूडिंग फेज पे आते हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पर एमबीए एमसीए के स्टूडेंट्स हैं, मतलब ओवरऑल अगर ब्रैकेट के अंदर देखा जाए तो हम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं। हम ज्यादा से ज्यादा, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स, टेक्निकल सॉल्यूशंस बना सकता है। उस टेक्निकल प्रॉब्लम, उस टेक्निकल सॉल्यूशन को कैसे कमर्शियल पैकेजिंग के अंदर डालें, ये एक इशू है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका स्टार्टअप सेल काम करेगा, और यही एक जरूरत है जिसको पूरा करने के लिए शर्त ये है कि अगर आप 24 घंटे काम कर रहे हो तो हमारा स्टार्टअप सेल आपके साथ काम करेगा, बट आपको 24 घंटे काम करना। आप एक प्रॉब्लम लेके आए तो उसके साथ साथ सर मैंने ये भी सॉल्यूशन ढूंढा, ये भी सॉल्यूशन ढूंढा, ये भी सॉल्यूशन ढूंढा, इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो हम आपको ऐसा रिजल्ट देंगे कि आप अपना जब बीई का, जब बीटेक का, जब एमबीए का, जब एमसीए का या एमई का डिग्री लेकर जब यहाँ से निकलोगे, उस समय आपके साथ नौकरी नहीं, आपके साथ एक चलता फिरता प्रॉफिट अर्न करता स्टार्टअप है। ये हमारा नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपके इस पर्टिकुलर सेशन को अपने एंड पे वाइंड अप करूंगा। कहानी इस प्रकार से, एक बंदा आइडिया में काम कर रहा था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, आइडिया में काम कर रहा था, उसने नौकरी छोड़ दिया काफी रीजंस के कारण। जब नौकरी छोड़ा तो उसके दिमाग पे आइडिया है, चलो यार फेसबुक के अंदर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम चलाएंगे। तो उसने मजाक में ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। फेसबुक पे ग्रुप बनाया। उस बंदे से साल भर पहले मेरी मुलाकात हुई। उस समय उसके ग्रुप के अंदर 35,000 लोग जुड़ गए थे। मैंने बोला यार 35,000 लोग जुड़ गए, ग्रुप बनाया, तो इसका बिजनेस शुरू करना, इसको तो लाखों रुपए कमा सकता है। नहीं सर, नौकरी चाकरी चल रही, करूंगा क्या। मैंने बोला चल एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ग्रुप को हम बढ़ाते हैं और कम से कम 1 लाख लोगों को इस ग्रुप में जोड़ते हैं। ठीक, तो हमने उससे मुहिम शुरू किया, हमने पोस्ट डालना शुरू किया। The name of the group, Facebook group is रायपुर जॉब्स। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे। आज के डेट में 1.5 लाख उसके मेंबर्स हैं। आज के डेट में अगर हम पोस्ट करते हैं, उसके अंदर एक जॉब पोस्ट करते हैं तो नवभारत, दैनिक भास्कर जो लंबा चौड़ा पैसा लेता है, हम फ्री में मैक्सिमम बायोडाटा जॉब जिनको देना है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। रायपुर जॉब्स नाम। तो आज हमारे पास 1.5 लाख लोग हैं। हम 1 लाख का टारगेट रखे, 1.5 लाख है। मैंने उस बंदे को कहा चल मिलके अपन एक काम करते हैं, इसको रजिस्टर करा ले। अरे नहीं सर, लफड़ा होगा, रजिस्टर कराएंगे तो इनका एम्प्लॉयमेंट का एक एसोसिएशन होता है, इसका मेंबर बनना है, ऐसा करना है। बोला ये सब फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, वी विल बी जस्ट इनटू ट्रेनिंग। ठीक है, कैसे करेंगे। अब XYZ प्लेसमेंट एजेंसी हमको बोलेगा हमको 50 बच्चे चाहिए अशोका मार्ट में सेल्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, अपने ग्रुप में डाल देंगे, वहां से हमारे पास गूगल फॉर्म से डेटा फिल्टर होके आ जाएगा।
हम उनको ट्रेनिंग देंगे मार्ट के हिसाब से, ट्रेनिंग का पैसा हमारा हो गया, हम उस बच्चे को प्लेस कर देंगे, वो भी थोड़ा बहुत कमीशन दे देगा। तो बैठे बैठे बिना कंपटीशन के हम अपने डेटाबेस से पैसे कमाएंगे। तो व्हाट वी हैव स्टार्टअप, यही बिजनेस है जो हम शुरू करने वाले थे अप्रैल 2020 में, ठीक है, पर कोरोना आ गया, हमने छोड़ दिया। अब हम इसको लेके अभी अप्रैल 2021 में लॉन्च करने वाले हैं। तो चलो इसको लॉन्च करते हैं, ऑफलाइन मोड पर ट्रेनिंग शुरू करते हैं, बिजनेस मॉडल बनाते हैं, अर्निंग शुरू करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारा मॉडल इतना तगड़ा बना हुआ, वो बंदा जो कि 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है अपने सेल्स के जॉब से, उसका खुद का प्रेडिक्शन है 4 से 5 लाख रुपए महीना मैं सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ के कमा लूंगा। हमने कैलकुलेट किया है, समय नहीं आया तो हमने उसको लॉन्च करने की टाइमिंग बदल दी। हम जिद पे आते, लॉन्च कर देते उस प्रोजेक्ट को, तो भी सुपर डुपर फ्लॉप मॉडल होता। क्यों? क्योंकि अभी तो सब बंद है, ग्रुप भी लॉकडाउन है, रायपुर भी लॉकडाउन है, आधे लोग डरे हुए हैं, आधे लोग के पास देने के लिए पैसे नहीं है, मार्केट फ्लो में आने में टाइम। तो हमने प्लान किया है, लेट अस अगेन वी विल बी गोइंग टू लॉन्च दिस बिजनेस इन द लास्ट, दैट इज दिसंबर 2001। जब तक हम इसको और फुल प्रूफ करेंगे, अब हमने टारगेट बनाया है कि हम 3 लाख लोगों के डेटाबेस में इस बिजनेस मॉडल को डेवलप करें। स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन, कुछ नहीं करके भी हमारे पास ऑफर्स पड़े हैं इस फेसबुक ग्रुप के अंदर, तो भैया हमारा कोचिंग सेंटर है, इसका एक मैसेज, एक टेम्पलेट, एक ब्रोशर डाल दो, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो एक बंदा बिना इन्वेस्टमेंट के, सुनते जाओ किस्सा, एक बंदा बिना इन्वेस्टमेंट के मजाक मजाक में फेसबुक पे ग्रुप बनाता है, उसके बाद मात्र 2,500 रुपए खर्च होते हैं, इसमें से 1250 रुपए वो देता है, 1250 रुपए मैं देता हूँ, हम उस 2,500 में उसको बिजनेस बनाते हैं, गुमाश्ता लाइसेंस लेकर, ताकि हमारा करंट अकाउंट हो सके। और 2,500 का इन्वेस्टमेंट, वो बंदा कॉन्फिडेंट है कि 4 से 5 से 10 लाख रुपए तक मैं कमा लूंगा। कभी सोचा था ऐसा बिजनेस मॉडल? ये स्टार्टअप है। स्टार्टअप क्यों है? क्योंकि हम प्लेसमेंट एजेंसी चलाए थे, हम तो ट्रेनिंग एजेंसी चलाए। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑनलाइन ट्रेनिंग का कि वाकई हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो मैंने कहा चलो विल बी प्रोवाइडिंग यू 7 डेज सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके अंदर ये चीजें रहेंगी। हमने सोचा था 20-30 बच्चे आ जाएंगे, आपको पॉकेट मनी मिल जाए। 550 रजिस्ट्रेशन हुए हमारे पास उस समय। वो तुम्हारे वो और चलता है ना, वो एक जूम का लाइसेंस में नहीं था, और ये जो तुम्हारा गूगल मीट है, 100 से ऊपर लोग नहीं देता। हम 50 सोच के चल रहे थे, गूगल मीट में चला लेंगे सोच रहे थे। इट वाज समथिंग सो कॉल्ड 500 रजिस्ट्रेशन। 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन, 1 दिन का, 5 दिन का सेशन। बंदा अगर 100 रुपए भी देता है तो कितना हो गया? एकदम छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये होता है बिजनेस मॉडल। अब मुझे ये बताओ, इस बिजनेस मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ है? तो स्टूडेंट्स, बी रेडी, तुम्हारी प्लेन लॉन्च होने वाली है, तुम सीट बेल्ट बांध लो। तुम्हारे टीचर जो है बैठे, वो एक से एक ब्रिलियंट मेंटर है, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स है, ठीक है। आप टॉप से लेकर जूनियर फैकल्टी तक की बात करो, हर टीचर के पास कुछ ना कुछ तुमको देने के लिए यूनिक आइडिया है। शर्त ये है, लेने के लिए तुम्हारे अंदर भूख होनी जरूरी है। तुम अपने टीचर के पास 10 बार जाओगे, वो तुमको 10 बार समझाएंगे। हर टीचर तुम्हारा मेंटर है, ठीक है। Move with a business model, start a business, we are with you। डिग्री सर्टिफिकेट के साथ चलता हुआ बिजनेस हम यहाँ से लेके निकलेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं आज पहले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, thank you so much, sir. It was really great to have you on board. Now I would like to invite Raj Kumar Singh, sir, for the vote of thanks. So one question from me. पूछिए सर, जो स्टोरी सर आपने बताई, जो सर उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन रेयरली होती है, या ये मतलब अगर हम स्टार्टअप करें तो इसके मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेस सर? क्योंकि आपने जो स्टोरी बताई वो बहुत ही मुझे लग रहा है क्योंकि रेयरली पॉसिबल है।
कौन सी स्टोरी की बात? सर ये जो वही एक बंदा जिसने ग्रुप बनाया एनोनिमसली। मैं ऐसी आपको 12 से 15 स्टोरी बता सकता हूँ। एक स्टोरी और सुन लो। बेंगलोर में एक लेडी थी, अपनी बच्ची के लिए फैंसी ड्रेस के लिए सफेद रंग का सूट चाहिए था। फेरी फेरी क्या बोलते हैं, परी वाला ड्रेस चाहिए था, नहीं मिला। तो ग्रुप बनाया। आज वो लेडी साल में 3 बार फेसबुक के अंदर फैशन शो चलाती है और उसका बहुत बड़ा ड्रेस मटेरियल का काम शुरू हो गया है फेसबुक पे। बालकृष्ण जी, जब हम आमने सामने बैठे थे तो मैं आपको इसके तो ये स्टोरी का मैंने अभी आपको मैंने एक घंटे में 7 से 8 स्टोरी बताई। एक स्टोरी 8 मिनट। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं तुमको फेसबुक के बिजनेस के बारे में स्टोरी बताऊंगा जिसमें से 4 स्टोरी तुमको रैंडम बताने होते हैं। You have not to worry on that. एक आइडिया होना चाहिए, बाकी पॉसिबल है ये। नहीं, तुम्हारे साथ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सब पॉसिबल। तुम अगर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, मैं तुमसे बहस कर रहा हूँ, तुम बहस करके मुझे कन्विंस कर रहे हो, मतलब तुमको आगे बढ़ने से कन्विंस। यस सर। That Thank you very much, sir. sorry, it was disconnected. Thank you, sir. Thank you very much. A very good afternoon to all. It is a great honor for me to propose the vote of thanks on this occasion. First of all, I would like to convey my sincere thanks to Dr. Satyavardhan Tiwari sir for sharing his valuable knowledge to us. Thank you very much, sir. I also express my sincere thanks to our director, Dr. Arun Arora sir, and principal, Dr. Mohan Gupta sir, for providing such a platform to us. I also express my sincere thanks to our vice principal, Dr. Manisha Sharma madam, for motivating us to make our startup club a grand success. Thank you very much, madam. And I am also very happy to express thanks to our participants for showing their interest on this activity, that is Startup Club activity. Thank you very much. And finally, I would like to thank Dr. Shubhrata Nagpal madam, convener Startup Club, all faculty members, and the pillars of the Startup Club, the students committee, for their hard work and commitment in this pandemic situation and made this event a success. Thank you very much to all. Now, one more thing. It is time to stand up respectfully for our national anthem. It will be played after a few seconds. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you very much to all. Over to you, Ritika. Thank you so much, sir. On the behalf of Startup Club, thank you, sir, for this truly memorable evening.
We hope you can join us again. And I request all the members present, all the students to fill the feedback form before leaving. The link is pasted in the chat box. Ritika, shall I leave?